से राहुल गांधी जी ने एक अपने शब्दों में कहा कि जो भी चाइना से एक्सपोर्ट हुआ माल आ रहा है उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। खबर सुनिए। The government of India thought they were fighting Pakistan. They suddenly realized that they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. This wasn't the first time LOP Rahul Gandhi ji warned the Modi government about the Chinese threat. But true to form, Modi slept on it. He ignored the danger, and now we are stuck with not one but two hostile neighbors. चाइना और पाकिस्तान एक हो गए और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा। 3 years ago, Rahul Gandhi ji had already predicted it. If a war breaks out, India will face both China and Pakistan together. The army confirmed the same after Operation Sindoor. Had Modi paid heed then, India could have strengthened defenses, strategy and diplomacy. But again, he chose to look the other way. We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi. I think that's a big ask. It was Rahul Gandhi ji who first exposed the Chinese intrusion in Ladakh. 20 Indian soldiers were martyred, and Modi didn't just deny it, he shamelessly lied to the nation. न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। Modi's silence became China's strength. The truth is, India has never had a weaker foreign policy. Modi's blue-eyed boy openly admitted he is scared of China. As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. Let alone borders, China is also sabotaging our economy. Yet the foreign minister says we have improved ties. Really, Rahul Gandhi ji has been warning about China for years with facts, with clarity and with courage. But Modi chose silence, denial and photo ops. A strong government doesn't lie to itself. It listens to the truth even when it comes from opposition. तो आज की दूसरी खबर आ रही है सीधी, और राहुल गांधी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्या कहा वो सुने खबर, और इकोनॉमी के बारे में भी क्या कहा खबर सुने। Trump said it, the world knows it, and Rahul Gandhi nailed it. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has taken a stand. बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म। The truth is, Modi didn't just mismanage the economy, he killed it to benefit one man. He killed it with demonetization and a flawed GST. He killed it with a failed Assemble in India tree. He killed it by wiping out MSMEs. And he killed it by crushing the farmers. And as the economy collapses, the world watches and reacts. Trump boasts about ceasefires, falling jets, and now tariffs. जवाब नहीं। क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? बात समझिए। And amid this crisis, India's foreign policy is taking hit after hit. फॉरेन मिनिस्टर भाषण करते हैं, we have a genius foreign policy। एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं कर सकते। कैसे चलाने देश को? Rahul Gandhi was right from the start. Modi didn't build India's strength, he sold it for photo ops and PR. He weakened India abroad, he broke its back at home, and he did it all for one man. तो एक और खबर आ रही है कि राहुल गांधी जी और सभी सांसदों और वेणुगोपाल और खड़गे जी सभी पार्लियामेंट परिसर पे मीटिंग हुई उनकी, और कांग्रेस पार्टी को भी बढ़ावा मिल सकता है। तो देखिए किस तरीके से सभी सांसदों और सभी नेताओं और सभी कार्यकर्ताओं किस तरीके से मीटिंग की चर्चित करते हुए, तो खबर सुने। धन्यवाद।
राजेश सिद्धि बिहार से। तो कैमरामैन रिपोर्टर ने कैद करते हुए कहा कि राहुल गांधी से मिलने गई पेड गर्ल तो रिया पासवान जी को पीटा गया राहुल गांधी जी के उपलक्ष्य में। तो खबर सुनी। जो स्लम में रहती है, राहुल गांधी के सामने बेबाकी से अपनी बातों को रखती है और बेखौफ होकर बुलंद आवाज में अपनी समस्याओं को गिनाती है, जिसका नाम है रिया पासवान। वो लड़की पटना की रहने वाली है, लेकिन पटना पुलिस उसके ऊपर, ना केवल उसके ऊपर बल्कि उसके पूरे परिवार के ऊपर कहर बनकर रात के अंधेरे में टूट पड़ती है और बर्बरता से पिटाई करती है। क्या बात थी, ये तो हम बात करेंगे। रिया हमारे साथ खुद है, लेकिन पहले रिया और राहुल गांधी, नेता प्रतिनिधि राहुल गांधी के बीच की जो बातचीत थी वो वीडियो आप देखिए। मेरा नाम रिया पासवान है और मैं बिहार के सबसे बड़े स्लम एरिया से आती हूँ। आपके पास समय नहीं है इसीलिए ना? नहीं, समय है मेरे पास। तुम भाषण तो बहुत अच्छा देती है। तो आपने देखा, ये है रिया पासवान जो राहुल गांधी से बेबाक अंदाज में बात कर रही है, खुलकर बेबाकी से बुलंद होकर अपनी बातों और समस्याओं को, मुद्दों को गिना रही है। और खुद राहुल गांधी इनके कायल हो जाते हैं। लेकिन पटना पुलिस आखिर क्या बात थी कि रात के अंधेरे में इनकी पिटाई करती है, ना केवल इनकी बल्कि इनके परिवार की भी। रिया, क्या वजह थी जो पटना पुलिस जो है घर में घुसती है? वो कौन लोग थे, पुलिस ही थे या फिर कोई और लोग थे जो आपकी पिटाई करते? मेरे पास सारा लोगों का वीडियो है और वो जो है लोग वो इसलिए मेरी पिटाई करते हैं क्योंकि इन लोग चाहते हैं कि मोहल्ला में दारू, सूखा नशा, स्माइक बिके। वो चाहते हैं कि बच्चा चोरी हो, वो चाहते हैं कि बलात्कार हो, वो चाहते हैं कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ रोज हो। और ये लोग जो हैं किसी का भी FIR लेते तक नहीं है आवेदन। तो सब महिला जो है हमको ढूंढती है, हमारी महिला का टीम है, तब हम जाकर सबका FIR तक करवाते हैं। अभी CCTV कैमरा पास हुआ था, DM को हम आवेदन दिए थे, हमारे मोहल्ला में बच्चा चोरी तक हुआ था। तो ये जो CCTV कैमरा पास हुआ था, तो हम थाना के बड़ा बाबू को भी मैसेज किए थे कि सर कहाँ कहाँ CCTV कैमरा लगवा दें, कुछ आइडिया दीजिए जहाँ पे गैर कानूनी काम हो तो पता चल जाए। तो वो मुझे कुछ नहीं बोले। और ये है कि क्या जो पुलिस वाले हैं वो ये जानते थे कि आपसे राहुल गांधी के बीच जो बातचीत हुई थी, वो वीडियो तो काफ़ी वायरल थी, वो सब कुछ जानते हुए भी ये सब किया तुम? हाँ, वो IAS हरजोत कौर के बारे में भी जानते थे कि उससे मेरी लड़ाई हुई तो वो हमसे माफ़ी मांगी IAS। वो राहुल गांधी जी के बारे में भी जान रहे थे कि वीडियो वायरल हुई जिसमें हम अपनी समस्या दिखाए, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जानबूझकर मेरे साथ जो है ये किए, क्योंकि इन लोगों को समाज के लिए काम करने वाली लोग नहीं चाहिए। इनको चाहिए इनकी गलत कामों में, धंधों में सपोर्ट करें। और हम लोग जो है जब से आए हैं तब से थोड़ा सा तो डर हो गया, इतना उसको डर हो गया है ना प्रशासन को कि रात को अंधेरी में एगो लड़की के मारने के लिए उसको 10 आदमी को लाना पड़ता है, 10 गो पुलिस वाले जो थे वो वर्दी में थे। और क्या महिला पुलिस भी थी या सिर्फ सारे पुलिस? एक महिला पुलिस थी, बाकी सब जेंट्स पुलिस था। एक बिना ड्रेस का था, बाकी सब ड्रेस का था। मेरे पास सभी पुलिस का वीडियो है, फोटो है। आखिर क्या वजह थी, क्यों आपकी पिटाई आपके परिवार है ना? हम दलित लड़की हैं, डोम चमार में आते हैं, वो डोम चमार कह के हमको गाली भी दिए हैं। बोलोगी? हाँ बोलोगी, डोमिन चमैनी कहीं थी, ऐसे कहकर हमको गाली दिए हैं कि ऑनलाइन कंप्लेन करती हो, आप करना कंप्लेन, ठिकाना लगा देंगे। अगर मेरा परिवार नहीं रहता तो ये लोग हमको जान मार देते। आज से 4 दिन पहले हम SP दीक्षा को आवेदन दिए कि मैडम हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास धन दौलत नहीं है, स्लम एरिया में रहते हैं, लेकिन सामाजिक जो काम करते हैं उसके वजह से मेरी जान को खतरा है। और वो जो SP है उसको हम 2 बजे 2:30 बजे रात को कॉल भी किए, लेकिन वो महिला मेरा कॉल काटी जो SP है। उसके बाद वो उसे हम वीडियो भी भेजे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दी है। क्या वजह हो सकती है कि क्या पुलिस वाले को, जैसा आपने आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सूखा नशा, शराबबंदी, ये तमाम चीज़ें जो है वो पुलिस को पैसा जाता है, इस वजह से मतलब हमको पिटा कि आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है? हाँ, उसको पैसा जाता है और प्लस में जो है जब CCTV कैमरा लग जाएगा तो इन लोगों को पैसा खाने में बनेगा नहीं, क्योंकि प्रशासन को भी हम बहुत बार बोले थे कि लगवाइए, तो ये लोग कुछ सुनता ही नहीं है। ये लोग तो जानता है कि बेच कौन रहा है, उसी के साथ बोलता है, बतियाता है, घूमता है और बोलता है कि तुम लोग कुछ करवे नहीं करती हो। और सारा कुछ जो है ना बड़ा बाबू सब लोग मिलकर करते हैं। इन लोग को महीना जाता है 60-60 हज़ार
और पता है, हमको लगता था ना कि हमारा जो जान का दुश्मन है वो जो गलत कामें करते हैं वो लोग हैं, लेकिन हमको जान से मारने के लिए प्रशासन आया। और जो कि हम 4 दिन पहले उसे आवेदन दे चुके हैं एसपी को, सिटी सेंट्रल एसपी को, कि मैडम हमारी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी वो हमें सुरक्षा क्यों नहीं दी। अपराधी बेखौफ होकर के घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार में क्या स्थिति है और क्या हालात है। हर तरफ पारस अस्पताल में के आईसीयू वार्ड में घुस करके अपराधी जो है गोली मार के चले जाते हैं आराम से। एक कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो जागरूक लड़की है, और कहा भी जाता है भाई कि लोग जागरूक हो, ये जागरूक हैं रिया पासवान, लेकिन इनकी पिटाई करें, इनके परिवार को देखिए, इनके परिवार की आप लोग ये कौन है? आपको भी मारा था? देखिए कितना हुर्रा हुर्रा चलाया। जेंट्स पुलिस जेंट्स थे, एक महिला थी, तो सब लोग मिलकर मारे हैं पूरा परिवार को। हम इसकी दीदी है, अब मेरा पेट में मारा है। उसको मारा इतना पेट में, जब हमें बचाने आई तो उसे इतना पेट में मारा। देखिए अभी उल्टी हो रहा है, प्रेग्नेंट है। और रात के अंदर पुलिस ने और क्या क्या किया था जरा बताइए। मेरा पूरा कपड़ा फाड़ दिया। मेरा उसी समय का, हम उस समय वीडियो भी बनाए थे, मेरा पूरा कपड़ा यहाँ से फाड़ दिया। अंदर कई जगहों पे मेरी चोटें का निशान है। मुझे इतनी, मेरे साथ साथ हमारे घर वालों को भी पीटा। अभी हमारी ऐसी ऐसी जगहों पे चोट का निशान है जहाँ मैं दिखा नहीं सकती। ये है रिया का परिवार, जो कि अभी पटना के मेडिकल कॉलेज में पहुंचा हुआ है जांच कराने के लिए। इन लोगों का मेडिकल होना है और पटना पुलिस के द्वारा बर्बरता से इन लोगों की पिटाई की गई है। ये इनका आरोप है कि पटना पुलिस ये जानते हुए भी कि ये वही लड़की है जो हर मुद्दे पर बेबाकी से बात करती है, हर मुद्दे को उठाती है, जागरूक होकर के महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आवाज़ बुलंद करती है और हर समस्याओं को गिनाते हैं। और खुद राहुल गांधी से, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से इन्होंने तमाम तरह की बातें और मुद्दों को गिनाया था। खुद राहुल गांधी इनकी बातों को सुनकर के इम्प्रेस हो गए थे, घायल हो गए थे। इनसे इन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि आप बोलती रहिए और मुझे अच्छा लग रहा है, आप अच्छी स्पीच देती हो। और काफ़ी देर तक राहुल गांधी ने भरे मन से इनकी बातों को सुना। इसके बावजूद भी पटना पुलिस के द्वारा ये पिटाई की। ये एक संगीन और गंभीर आरोप है कि खाकी वर्दी, जिसका काम होता है लोगों की सुरक्षा करना, लोगों को की हिफाजत करना, जब वर्दी ही इस तरीके का काम करने लगे तो फिर क्या हो? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये रिया का ये भी आरोप है कि पटना पुलिस को पैसा जाता है और उनसे मिली भगत है। इस वजह से जो है ये आवाज़ उठाती है कि जो लोग बच्चे नशा कर रहे हैं और जो गलत काम हो रहा है समाज में, उसकी जो लड़ाई लड़ते हैं, इसके लिए ये डर जाए, इनका मुंह बंद हो जाए। ऐसा इनका आरोप है कि पुलिस इस वजह से इनको परेशान करती है, तंग करती है। तो एक बड़ी खबर आ रही है सीधे ही झालावाड़ से। तो झालावाड़ पहुँचे सीधे ही नेताजी, तो वहाँ पहुँचे इस खबर आ रही कि 2 बच्चे की मृत्यु हो गई, तो माँ बाप रो रो कर पड़े। तो खबर सुने। तो किसी ने कुंदन, तो ये बिल्डिंग की हालत जर्जर थी पहले से ही। स्कूल की जो इमारत खराब हो रखी थी, तो किसी ने उसको सुध नहीं ली ठीक करने की, सरकार ने, प्रशासन ने, शिक्षा विभाग ने, किसी ने नहीं सुनी। हमने दरखास्त दी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। आपके 2 बच्चे थे इसमें, तो कौन कौन किस क्लास में पढ़ते थे? अच्छा, मीना आपकी बेटी 5वीं में थी, बेटा एक फर्स्ट क्लास में था। तो ये क्या बिल्डिंग जर्जर थी? तो इसकी शिकायत नहीं की कभी कि टूट सकती है? देखा नहीं किसी अधिकारी ने कभी? अच्छा, आप काम क्या करते हो?
ये जितने बच्चे मरे सारे इसी गांव के थे क्या? टोटल कितने बच्चे? 7। और इंजर्ड कितने? जिनको चोट आई है, चोट तो कितने को लगी है? 21 को चोट लगी और 7 की डेथ हुई है। तो अभी सब अस्पताल में है कि डिस्चार्ज हो गए? तो ये सारे बच्चे सारे आदिवासी और दलित थे। इसमें दलित कितने, आदिवासी कितने? इसमें दलित और आदिवासी कितने? 2 SC के बच्चे हैं। 4 ST का मरे, 1 OBC। अच्छा, 4 ST, 2 SC, 1 OBC। 2 SC, 4 ST, 1 आदिवासी। अच्छा, आपके 2 ही बच्चे थे? बेटा और बेटी नहीं के बने? बड़ा दुख है। अरे कितने साल के थे वो? 5वीं में था, एक 1st में। अच्छा, और कितने बजे ये मतलब स्कूल सही, कितने बजे ये घटना कितने बजे की? सुबह 7:30, मतलब गए और हो गया ये। पहले इनने शिकायत करी थी कि टूट रही है छत, ऐसा कुछ शिकायत करी थी क्या? पहले बताया था बच्चों ने कि यहाँ पर शिकायत पहले भी शिकायत करी थी। और उस पर उसके बाद भी इन्होंने पर कोई कार्रवाई नहीं करी। ये तो बहुत बड़ी घटना हुई, मतलब सब हिल गए। इससे ज्यादा दुख की क्या बात है? देखो, इनके 2 बच्चे दोनों के दोनों चले। दोनों के दोनों चले। और जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उसको वो अब तक आगे नहीं चाहते। उनका कोई सांसद विधायक नहीं आया, कोई नहीं आया। कम से कम संवेदना देने आ जाते। मैं कम से कम संवेदना देने तो आ जाते। कांग्रेस वाला नहीं करे तो बीजेपी वाला भी नहीं है। कांग्रेस वाला नहीं है तो यहाँ तक संस्कार करा दिया उसी दिन, सुबह जल्दी। पहले तो रात में करवा रहे थे। रात को 8 बजे का संस्कार कराने के लिए कलेक्टर एसपी तैयार हो गए। परिजनों के ऊपर दबाव बना। आपका क्या करता है? आप क्या करते हो? जबरदस्ती साइन कराएं तो फिर आगे क्यों लाठीचार्ज किया? बीच बात पे लाठीचार्ज कर दिया। हम लोग जो है दिल्ली से आए हैं और मैं अनुसूचित जाति विभाग का नेशनल चेयरमैन और हमारे विक्रांत पुरिया जी हैं जो अनुसूचित जनजाति के आदिवासी के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं कांग्रेस पार्टी के। आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमें भेजा है। संसद चल रही है तो वहाँ पे उन्होंने कहा था आप जरूर जाओ, हम मेरी तरफ से संवेदना देते हैं और हम पूरी हर संभव मदद करेंगे। साथ में शासन पे, प्रशासन पे, यहाँ की सरकार पे दबाव बनाएंगे कि कम से कम किसी और माँ की घोषणा हो और कम से कम जो बाकी स्कूल उनको तो रिपेयर करा दो। क्योंकि अभी संडे को छुट्टी होती है, आपको पता है कि संडे को उदयपुर के अंदर भी एक स्कूल की छत गिरी है। तो समझो संडे था, बच्चे नहीं थे, नहीं तो वहाँ भी बच्चे मारे जाते हैं। और जो गरीब है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है। आप पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। ये कहकर डराया आपको डीएम ने। प्रशासन ने कोई ध्यान ही नहीं दिया आपकी बातों पे। बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है सरकार की नजर में।
बड़ा शर्मनाक बात है। अच्छा, तो यहाँ कोई जो क्षेत्रीय सांसद हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, तो कोई आए नहीं आए मिलने? ये सब एक भी नहीं है, कोई भी नहीं आया। तो सांसद वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री उनके बेटे हैं वो भी नहीं आए मिला। तो कह रहे हैं सबको छत देंगे, प्रधानमंत्री जी क्या छत दे रहे हैं ये? एक मिनट, सब लोग मत आना, मैं देखता हूँ। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इनको कब मिलेगा भाई? हैं? तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है यार। रहने की बेचारे कैसे रह रहे हैं इस बरसात में? यार किस तरह हालात में रह रहे हैं? ये रह रहे हैं साहब, यहाँ पे 80% लोग इस क्षेत्र में नए तरीके से रह रहे हैं। कलेक्टर आया साहब, उसने कलेक्टर साहब ने यूँ कहा कि मैं हम आवास योजना दिला देंगे। ये गिर सकते, बच्चे मर सकते, कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। कोई प्रशासन, कोई यहाँ के एमएलए आए मिलने? आपसे नहीं, कोई नहीं मिलने आया। बड़ी दुख की बात है कि कोई मतलब, और वो एक ओबीसी, 2 दलित और 4 आदिवासी, तो यहाँ सारे बच्चे सारे गरीब परिवारों के। तो ये तो स्कूल की जो इमारत गिरी है पहले से जर्जर होगी, तो क्या इस पे कभी शिकायत नहीं की? या ये शिकायत हुई थी लेकिन इसमें दी गई थी सूचना, उसके ऊपर लिखा होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में। मतलब गांव ने तो अपनी तरफ से कोशिश की कि भाई ये गिर सकता है, बच्चे मर सकते हैं, आप इसकी रिपेयर करो, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। जब बजट मरम्मत के जारी किया था लेकिन आया नहीं यहाँ तक, किया नहीं। जब पैसा आने के बाद भी नहीं किया। तो ये बच्चे एक्चुअली हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल हैं इनको धीरे धीरे सरकार बंद करती जा रही है, बड़े पैमाने पर बंद कर रही है। पिछले 11 साल में ही 1 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। और देखने में आ रहा है कि सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के। तो यहाँ जो 7 बच्चे मरे, 7 के 7 में से 4 आदिवासी हैं, 2 दलित हैं, 1 पिछड़े वर्ग से। मतलब इनकी तरफ ध्यान ही नहीं है किसी का। ये तो बड़ा शर्मनाक बात है। ये बच्चों की ध्यान देंगे, ये तो क्लियर एकदम सरकार की घोर लापरवाही की वजह से है। स्कूल की छत कोई नहीं, आपकी बात को ऊपर उठाया जाएगा। हम राहुल गांधी जी ने हमें भेजा है, हम आपकी पूरी स्थिति में बताएंगे। और जो उत्पीड़न किया है हम सरकार ने, और जो लोगों को धमकाया है, और जो आपको जिस तरह मतलब परेशान किया, शिकायत करने के बाद भी मरम्मत नहीं कराई, नहीं बच्चे बच जाते, जितने बच्चे हैं जितने छोटे हैं। हमारी बेटा आपके साथ है, आपके बच्चे जल्दी स्वस्थ हो। दिल्ली से हैं और राहुल जी को बताएंगे, राहुल जी की तरफ से। हालात बहुत खराब है, कई परिवारों के ऊपर तो पक्की छत भी नहीं है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक सबसे सर पर छत होगी, लेकिन यहाँ तो पता लग रहा है लोग छप्पर में रह रहे हैं, कई की तो दीवार भी नहीं है। एक परिवार के तो 2 बच्चे थे, बेटा बेटी, एक 5th में पढ़ती थी बेटी, बेटा 1st में पढ़ता, तो 2 नहीं चले गए, उनका तो कुछ बचा ही नहीं, ना उन पे मकान है ना बच्चे बचे। और सबसे मैं तो ये मानता हूँ कि ये केवल लापरवाही से डेथ नहीं हुई है बच्चों की, बल्कि मैं इसे प्रशासन के द्वारा की गई हत्या मानता हूँ। क्योंकि जब प्रशासन के पास लिखित में सूचना गई है कि भाई ये स्कूल गिर सकता है, इसकी छत गिर सकती है, इसकी मरम्मत की ज़रूरत है, बच्चों की जान जा सकती है, उसके बाद भी उस स्कूल की मरम्मत नहीं हुई। और ऊपर से एक बयान शर्मनाक, मदन दिलावर जी जो शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान की, उनका जो बयान आया अभी 2-3 दिन पहले,
इसके स्कूलों की मरम्मत के बारे में उनका बयान है कि मैं क्या अपने घर से कराऊंगा, पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। आप शिक्षा मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए। कौन सा मंत्री घर से लगाता, सरकार लगाती है। सरकार क्या, सरकार के पास पैसा नहीं है? मैं 2024-25 का बजट देख रहा था राजस्थान की सरकार का। उस बजट में करीब 150 करोड़ का प्रोविजन तो धार्मिक स्थलों के लिए किया गया। क्या आप स्कूलों का निर्माण नहीं कर सकते, स्कूलों की मरम्मत नहीं कर सकते? 7 बच्चे मरे हैं, 20 के करीब बच्चे घायल हैं, कई बच्चे अभी भी अस्पताल में जिनकी जान अभी भी आफत में आई हुई है। और आपको बयान देने में भी शर्म नहीं आती, आप क्या बोल रहे हैं? अभी तक क्षेत्रीय विधायक मिलने तक नहीं आए पीड़ित परिवारों से। ऊपर से सरकारी स्कूल लगातार बंद किए जा रहे हैं, प्राइवेट खोले जा रहे हैं। ये गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? जितने बच्चे मारे गए या इंजर्ड है सारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूलों में सारे गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं। इसलिए आप सरकारी स्कूलों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तवज्जो नहीं दे रहे हो, बंद करे जा रहे हो सारे स्कूल। पिछले 11 साल के अंदर 1.5 लाख के आसपास सरकारी स्कूल बंद हो गए पूरे देश के अंदर। तो देश जा किस दिशा में रहा है? शिक्षा को महंगा करके आपने बच्चों से शिक्षा छीन ली, ऊपर से सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है। नए स्कूल आप बना नहीं रहे हो, पुराने की मरम्मत नहीं कर रहे हो। अभी ये तो अच्छा हुआ संडे को जो छत गिरी स्कूल की उदयपुर के अंदर, तो छुट्टी थी बच्चों की, तो वहाँ भी बच्चे मारे जाते। इतनी असंवेदनशील सरकार मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी जितनी यहाँ राजस्थान की सरकार असंवेदनशील। ऊपर से उचित मुआवजा नहीं दिया। अभी पीड़ित परिवार बहुत दुखी है, सदमे में है। अभी भी इसलिए भी दुखी है कि उनका विधायक तक उनसे मिलने नहीं आया। सरकार को जो मदद देनी चाहिए थी वो पर्याप्त मदद नहीं दी। ऊपर से उनको धमकाया गया, डराया गया। और जो लोग न्याय की मांग कर रहे थे, कई लोगों पर सुना मुकदमे भी बना दिए। ये कैसी सरकार है? ये तो अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है। न्याय की आवाज उठाने वालों पे मुकदमे दर्ज करोगे आप। लाठीचार्ज भी किया इन्होंने पुलिस ने। मतलब ये तो शर्म की बात है। थोड़ी बहुत तो कम से कम संवेदना होनी चाहिए। जिन्होंने अपने बच्चों को खोया उनके प्रति संवेदना की वजह लाठीचार्ज कर रहे हो आपको तरीक भी शर्म नहीं आई। हम लोग राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और हम यहाँ से जाकर उनको पूरी रिपोर्ट देंगे। उन्होंने पीड़ित परिवारों को संवेदना व्यक्त की है, हर प्रकार की मदद का वादा किया है। उनकी आवाज़ को वो पूरे केंद्र सरकार के सामने बेहद मजबूती के साथ उठाएंगे ताकि इन पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके और आगे से कोई और कम से कम और स्कूल तो बच जाए, वहाँ तो कोई छत गिर के बच्चे ना मरे। उसमें 1-1 करोड़ रुपए दिया गया, या चूंकि गरीब परिवार के बच्चे उन्हें 10-10 लाख। आप खुद सोचो कि सब कुछ छत नहीं है। कम से कम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप इतना चीखते थे, इतना प्रचार करते थे टीवी मीडिया पे, आज उनको छत तो मिल नहीं रही है, उनको मकान तक नहीं बना के दे पाए। एक ने तो यहाँ तक शिकायत की है उनको राशन तक भी नहीं मिलता, उनकी राशन कौन खा रहा है? तो बेहद दुख की बात है, शर्म आनी चाहिए सरकार। और कम से कम शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, यहाँ के विधायक को इस्तीफा देना चाहिए। पीड़ित परिवार का हम जाके उनको बताएंगे कि यहाँ पीड़ित परिवार सदमे में है। ज़्यादातर परिवारों के सर के ऊपर पक्की छत नहीं है, बच्चे अभी भी कुछ अस्पताल में पड़े हुए हैं। एक परिवार के 2 बच्चे थे, दोनों ही गुजर गए। पत्नी और पति बीमार हैं, ऊपर से उनको डराया गया, मुकदमा बनाने की धमकी दी गई, जबरदस्ती अंतिम संस्कार करवाया गया। और जो न्याय की मांग कर रहे थे कुछ पे तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया, लाठीचार्ज किया, लोगों को चोटें आई। तो कैसी असंवेदनशील सरकार देंगे ताकि वो मजबूती से संसद में सरकार के सामने आवाज़ बुलंद कर सके। और इतना तो दबाव सरकार पर बने और छत के